Hello 10th standard and welcome to SS class. Today we are going to start with we are going to continue with the consumer awareness chapter, right? And we'll start with the topic measures of consumer protection, right? And what kind of measures are taken consumer को protect करने के लिए किस तरह के measures लिए जाते हैं किस तरह के acts बने हैं किस तरह के laws बने हैं and what kind of codes are there we are going to study in this topic. Following four types of measures have been undertaken for consumer protection. The first is three tier, right? जिसको हम tribunal codes भी बोलते हैं. Now let us study कि ये tribunal codes में ये three tier codes में क्या होता है. Under National Consumer Protection Act in 1986, Central Consumer Protection Council, that is National Consumer Commission, has been set up. Similarly, the State Consumer Forum also has been set up at the state level. Under this commission, laws for consumer protections are framed. National Consumer Disputes Commission has created the structure of three-tier codes and framed norms for actions of Consumer Forum or Commission. अब यहाँ पर जो बताया है कि अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड नेशनल कंज्यूमर कमीशन के अकॉर्डिंगली किस तरह कोड्स बने हैं और कितने कोड्स बने हैं. सो नाउ लेट अस रीड how many types of codes are there and what. First here they are mentioning is district forum, right? Generally there is one code in every district which is very important code. ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोड है, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट स्टडीज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कंज्यूमर फोरम्स एंड कंज्यूमर कोड्स. ठीक है, it studies the complaints of consumers and gives compensation to the consumer against laws. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर, राइट, जो भी कंज्यूमर वहां पर कंप्लेन लेकर जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर की कंप्लेन सुनते हैं और उसके बाद जो है वो स्टडी करते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड इफ द कंज्यूमर इज राइट और अगर उनको लॉस हुआ है तो उनको कॉम्पेंसेशन भी जो है मिलता है. Approximately 571 consumer district forums are working in our country. In these codes, presently claims for compensation about rupees 20 lakhs are filed after paying the decided fee. अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में किस तरह के जो है कंज्यूमर अपना कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, जिनका लॉस जो है ₹20 lakhs तक. ठीक है, ₹20 lakhs तक अगर कोई लॉस हुआ है तो दैट कंज्यूमर कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट फोरम. ठीक है, इफ द पिटिशनर इज नॉट satisfied with the decision of district forum, he may file a complaint in the state commission within next 30 days. So it is just in the same way like a normal code कि अगर जो पिटिशनर है जिसने कंप्लेन की है वो अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो भी उन्होंने मतलब डिसीजन लिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में यानी स्टेट कोर्ट में आगे जा सकता है, स्टेट फोरम में जा सकता है विद इन 30 days. But before that, he has to pay either 50% amount of compensation claims or 25,000, whichever is less. लेकिन before moving towards a state forum में जाने से पहले, right, जो petitioner है उसको 50% of the compensation pay करना पड़ता है, या तो 50 जो भी amount है उसका 50% या फिर 25,000 rupees, whichever is less, जो भी less amount है वो उनको pay करना पड़ता है. Then comes state commission. डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद comes state forum. अब स्टेट फोरम में कितना जो है फिगर डिसाइड किया हुआ है, राइट. Approximately 35 state forums are working presently. In these codes presently claims of compensation from
20 lakh to 1 crore are filed after paying the decided fee. ठीक है, बिलो 20 lakhs कहाँ पर जो है क्लेम कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो भी क्लेम है वो हम कहाँ पर जो है फाइल कर सकते हैं? वो कंप्लेन स्टेट फोरम में हम फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। If the petitioner is not satisfied with the decision of the state commission, he may file a complaint in the national commission within 30 days, although he has to pay either 50% of the compensation claim or rupees 35,000, whichever is less. In the same way, अगर the petitioner अगर वो state forum से satisfied नहीं है, right? उनके decision से satisfied नहीं है, तो that petitioner can move towards a national forum within 30 days. The law is saying either he has to pay 50% of the compensation or rupees 35,000, whichever is less. ठीक है? Then comes the national forum, right? अब national forum में compensation claim कितना होता है? Above 1 crore. अगर आपको loss फाइल करना है, right? तो वो अबाउट 1 करोड़ का अगर हो तो आपको जो है नेशनल फोरम में जाना होता है। Could be decided here by paying the decided fee. This commission is bench of 5 members. अब यहाँ पर नेशनल फोरम में there are 5 members who are sitting over here. जो कमीशन है, जो बोर्ड है, जो 4 people है, right? So ग्रुप जो है वो 5 लोगों का है, right? State Commission and National Commission should give the decision as early as possible or within the 90 days of filing the case. अब यहाँ पर जो है ये जो केस जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि बहुत जल्दी जो है उसका डिसीजन जो है वो दिया जाए एंड विद इन 90 days the case should be filed. If the petitioner is not satisfied with the decision of National Commission, he may file a case in the Supreme Court within next 30 days. और अगर क्योंकि 1 करोड़ की बात हो जाती है, राइट? और अगर more than 1 करोड़ also, तो अगर if the petitioner is not satisfied, तो फिर petitioner जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है within 30 days. The norms are same. It is compulsory to deposit 50% of the compensation amount or 50,000, whichever is less. If the person does not compile the orders given by any of the court, he could be given punishment or penalty or both of them. अब जो पर्सन है अगर जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए हैं जो ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इन फोरम्स ने इन कोर्ट्स ने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल सकता है. वो पनिशमेंट पेनल्टी हो सकती है या फिर पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों हो सकता है. पनिशमेंट कैन बी behind bars, right? People below poverty line, senior citizens or handicaps are exempted from paying fees under certain conditions. और ये जो अपन ने फीस बताई 50% और द अमाउंट 25,000 or 35,000 or 50,000, ये जो फीस होती है इट इज एग्जेम्प्टेड. दैट इज कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, सीनियर सिटीजन हैं या हैंडीकैप हैं, उनको ये फीस पे करनी नहीं होती है. दे डू नॉट हैव टू पे दिस फी. They are also provided free service under district free legal service, guidance of legal aid and advocate. उनको एक और भी जो है सर्विस दी जाती है, दैट इज उनको लीगल हेल्प मिलती है, एडवोकेट मिलता है अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस. ठीक है. Now comes the consumer society. What does the consumer society do, or what does the Consumer Protection Council do? As per this act, government recognized consumer societies have been established at taluka, district, state or national level. The consumer societies or councils are non-political, non-commercial, voluntary organization set up by the consumers. जो हमने आगे पढ़ा ये तो एज पर गवर्नमेंट वाली चीजें आ गई है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्टेट एंड नेशनल फोरम्स एंड ऑल. लेकिन ये जो सोसाइटी है, ये जो प्रोटेक्शन काउंसिल जो है, ये कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन.
तो ये कोई नॉन पॉलिटिकल है, नॉन कमर्शियल है, ये वॉलंटरीली यानी सबकी सहमति से, राइट, कुछ लोगों ने अपनी सहमति से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यू कैन अंडरलाइन दिस। The main objective of these consumer society is to bring awareness about consumer rights and encourage them to help government to frame policies or to protect from time to time. The main objective is कि लोगों को awareness spread करें, लोगों को बताएं सोसाइटी में अबाउट कंज्यूमर राइट्स की आपकी राइट्स क्या है एज अ कस्टमर, जागो ग्राहक जागो, है ना। इट कीप्स ऑन रिव्यूइंग प्रोविजन फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स, और लोगों को अवेयर करते हैं कि किस तरह कंज्यूमर के जो क्लाइंट्स के जो कस्टमर्स के राइट्स हैं, राइट जो लॉज हैं वो जो फ्रेम हो रहे हैं, वो रिव्यू हो रहे हैं, जो नए लॉज आ रहे हैं उन सबके बारे में लोगों को अवेयर करना। It also gives suggestion to government regarding need to change legislative provisions. अब वो गवर्नमेंट को भी जो अगर कुछ चेंजेस अगर लाने हैं, many of the time the laws which are made, बहुत पहले लॉज बने हुए होते हैं, लेकिन बाय टाइम वो लॉज जो है किसी भी सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं हो पाते हैं, उनको चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ये गवर्नमेंट को भी सजेशंस देती हैं टू चेंज, टू अमेंड, राइट, these provisions. These consumer societies provide consumer education through consumer awareness programs, which provide guidance on main subjects like right of consumer, duties, exploitation in different ways, and how to be saved from exploitation. अब ये जो कंज्यूमर जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब है ना किस तरह प्रोग्राम चलाती है, जैसे कंज्यूमर की जो राइट्स है, राइट उसकी ड्यूटीज क्या है, कंज्यूमर कहाँ कहाँ पर एक्सप्लॉइट हो सकता है, तो वो एक्सप्लॉइटेशन से उनको सेव करने के लिए उनको पहले ही मतलब है ना वो गाइडलाइंस होती है कि कहाँ पर वो अपने आप को सेव कर सकता है। These consumer societies or organizations publish monthly, bi-monthly magazines or periodicals like Girak Suraksha, Insight, The Consumer, Girak Manch, etc. and try to bring awareness. They are helpful in elimination of complaints of consumers. अब वो लोग किस तरह, जैसे वो अपनी मैगजीन्स बनाते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं, एवरी मंथ मंथली मैगजीन्स होती हैं उनकी, बाय मंथली यानी महीने में 2 बार छोटी छोटी सी पीरियडिकल्स होती हैं। फिर जैसे वो नाम हो सकता है जैसे ग्राहक सुरक्षा, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, आप लोगों ने ये सब मैगजीन्स देखी होगी, राइट, ग्राहक मंच, राइट। इस तरह की पीरियडिकल्स और मंथली मैगजीन्स वो लोग निकालते हैं, पब्लिश करवाते हैं, so that the people read it and they are aware of it. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, राइट। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम essential commodities of good quality are provided in the fixed quantity at subsidized rates to the poor at regular interval from fair price shop. Thus, a poor consumer is saved from the exploitation in the open market, from where they have to purchase goods at high rate of low quality and less weight. Public distribution system controls corrupt practices of traders. This we have studied before also. ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जो गवर्नमेंट चलाती है, उससे क्या होता है कि कोई जो शॉपकीपर्स है जिसको हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं, वहां पर जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या पुअर लोग जो हैं उनको जो है फिक्स क्वांटिटी दी जाती है कमोडिटीज की, एसेंशियल बेसिक एसेंशियल प्राइमरी कमोडिटीज की, राइट, और एट सब्सिडाइज रेट, कम रेट में दिया जाता है ताकि वो पुअर लोग जो है वो मार्केट के हाई रेट में बिकती हुई चीजों से एक्सप्लॉइट ना हो पाए। ओके, system certifying weights and measures and purity of goods. अब इसमें क्या है, let's see. For health and safety of consumers, government has set up many legal institutions which perform the task of checking the quality, quantity, purity of produced goods and certifies them. आप सब देखोगे कि हम बहुत सारे मार्क्स देखते हैं, बहुत सारे साइंस देखते हैं, इनिशियल्स देखते हैं, राइट,
जब हम वेट्स और मेजर्स में या प्योरिटी में ये सारे जैसे ISI मार्क या एग मार्क या BIS हम ये सब मार्क्स देखते हैं तो हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यस दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट, राइट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मार्क्स, राइट, दैट शोज लाइक यू नो कि इधर क्वालिटी क्वांटिटी प्योरिटी ये सब अच्छा होगा। तो दिस इज यू नो इट इज सर्टिफाइड। ये मार्क्स कब दिए जाते हैं कि दिस प्रोडक्ट दिस कमोडिटी इज सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। Government of India established ISI, that is Indian Standard of Institute, in 1947 to regulate quality. Now, since 1986, it is known as BIS. वो जो पहले ISI mark था, now it is known as BIS, that is Bureau of Indian Standard. The goods that meet the described standard and quality are allowed to use ISI mark or BIS mark. अब जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, जो प्रोडक्ट है, राइट, अब ये जो प्रोडक्ट वगैरह जो है, ओके, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कमोडिटी है, एंड इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड कि यस एज आई टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत अच्छा है, right, so then definitely this marks, you know, these are certified products and this mark is used. The agricultural products like forest products, horticulture, animal products are given the mark egg mark, right, और दूसरा कौन सा mark है, egg mark, which is put on agricultural products like forest products, horticulture, animal products. It is implemented under agricultural product on Act 1937. The scheme is run by the Directorate of Marketing and Intelligence, DMI, in the Ministry of Agriculture. Government of India, which grants permission to traders to use egg mark. अब यहाँ पर कुछ traders जो हैं, right, जो involved है government के साथ, जो products like forest products, horticulture, animal products जो use करते हैं, तो उन लोगों को ये mark use करने की permission दी जाती है, and that is called as an egg mark. मतलब agricultural product में आप egg mark का sign देखेंगे. If the consumer has any doubt regarding the quality of marks, he can contact the regional office of the BIS. अब अगर suppose for example हम सोचते ISI या egg mark या BIS ये बहुत certified चीजें हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी consumer को उसमें कुछ doubt है, उसकी quality में कुछ doubt है कि भाई दो इधर सर्टिफाइड है, मार्क दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अप टू द मार्क नहीं है, राइट, तो दैट कंज्यूमर कैन कॉन्टैक्ट रीजनल ऑफिस ऑफ द BIS. Even gold ornaments are given BIS mark along with purity number, that is 916, which means quality and purity of gold is generated by certain parameters. Even gold में भी आप देखेंगे, अगर ऐसे तो आज आप देखना कुछ कुछ चीजें आप उठाकर देखना और आप ऑब्जर्व करना कि कहाँ पर और कौन से प्रोडक्ट में ये सारे मार्क्स हैं, राइट, एंड यू नो अगर कोई गोल्ड जो है उसमें अगर BIS मार्क है, दैट मीन्स कि उसकी प्योरिटी चेक की हुई है, क्वालिटी जो है वो चेक की हुई है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है वो चेक किया हुआ है अंडर सर्टेन पैरामीटर्स. These are BIS mark, gold number. Example 916 depicts 22 carat gold. अब गोल्ड में देखो 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 18 कैरेट होता है, तो 916 अगर नंबर दिया हुआ है गोल्ड नंबर, तो दैट मीन्स कि वो गोल्ड जो है वो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट्स का है. Hallmark logo is given by the central government which shows the year of hallmark. Example, J means jewelry, manufactured in 2008. और अगर हॉलमार्क वहां पर अगर J 2008 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये जो मैन्युफैक्चर्ड है, ये गोल्ड कब मैन्युफैक्चर हुआ है, 2008 में मैन्युफैक्चर हुआ है. मार्क ऑफ FPO is used on jam, fruit juices, fruits or vegetables packed in tin. अब यहाँ पर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि फूड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से मार्क्स होते हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे जैम की बॉटल है, फ्रूट जूस है, वेजिटेबल्स जो है, वहाँ पर FPO मार्क होता है. Again, that is a government mark
राइट। तो दैट शोज कि अगेन फिर से जो है वो सर्टिफाइड है, क्वालिटी वगैरह देखी गई है। आप अगर ऊन खरीदते हो, वूल खरीदते हो, है ना, तो उसमें वुलमा का लोगो होता है, यू कैन सी 18.9, राइट, इस तरह का लोगो होता है, दैट शोज अगेन इट इज सर्टिफाइड, राइट। फिर देन यू हैव इवन एमपीओ लोगो, देन HACCP लोगो। लेट अस सी कि ये सारे लोगोस कौन सी चीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो BIS अलाउज, BIS जो है, पहले ISI था, या BIS जो है वो लोगो जो है, ओके। सो नाउ सपोज फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि ISI मार्क या BIS जो है वो टेक्सटाइल में केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, राइट, प्रोडक्ट्स ऑफ रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसमें कौन सा यूज होता है, ISI मार्क वाला यूज होता है, ठीक है। फिर जो वूल मार्क है, एज आई टोल्ड यू, इट इज गिवन टू द वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस। MPO, अब MPO is used for meat processing optimizer. A meat processing optimizer is given, मतलब meat, mutton products made from them, ठीक है। HACCP, that is hazard analysis and critical control point. It is given to the processed food. Guys, you have to remember these marks and you have to remember कि कौन सी चीज में ये यूज किए जाते हैं, किस चीज के लिए सर्टिफाइड होती हैं, right? Next come ECO, that is eco. It is given to soap, detergent, paper, lubricant, oil, packing material, color chemicals, power coating, battery, cosmetics, goods used in place of wood, leather, and plastic products by ISI, presently called BIS. अब ये जो इको जो है ये सारी चीजों के लिए यूज होता है, राइट। प्रोडक्ट्स बाय कौन से हैं, ISI, एज आई टोल्ड यू, नाउ ISI इज कॉल्ड एज BIS, राइट। देन कम्स वी हैव, अब ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई, राइट। वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस एट इंटरनेशनल लेवल आल्सो. So now we have two organizations which are working at international level for standardization of products. One है ISO, दूसरा है CAC. That is CAC कौन सा है, Codex Alimentarius Commission. ठीक है, first let us read about ISO. ISO means International Standardization Organization. उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा, राइट, उसका हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा. And when it was established, see all these are things you can even get it for objectives, right. Where it was, I mean when it was established in the year 1947. और उसका मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है ISO का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. अब देखो कभी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है ISO 9000, ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, राइट. तो उससे पता चलता है वो जो सीरीज है ISO 9000 की जो सीरीज है, that is given for environment management system by international organization, which is a certification of officers and institution having high quality. अब ये जो ISO 9000 की जो सीरीज हमारे प्रोडक्ट्स में लिखी हुई होती है, इससे समझ में आता है कि पहली चीज तो ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, राइट. दूसरा जो है उसको सर्टिफिकेशन इसीलिए दिया हुआ है बिकॉज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट मगर इस जो भी है उनके नॉर्म्स में आता है, वो क्राइटेरिया में आता है, क्वालिटी वगैरह जो कुछ भी है सब सही है, हाई क्वालिटी का है, इसीलिए उनको सर्टिफाई किया है, ठीक है. दूसरा जो हमने बताया अभी कि नेक्स्ट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज CAC, दैट इज कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन. Now this organization was set up to certify edible products. Edible products यानी खाने वाली चीजें जो होती हैं, राइट, उनको ये सर्टिफिकेट, ये प्रोडक्ट, ये वाले खाने वाले प्रोडक्ट्स में जो है वो ये लोगो यूज होता है. It is an international organization commission for food. In 1963, Food and Agriculture Organization,
that is FAO, and World Health Organization WHO established it. Its headquarters is located in Rome, capital of Italy. अब ये इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? रोम में है. रोम कहाँ पर है? इटली में है. ठीक है. अब इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन वो सर्टिफाई किसको देता है? ये सर्टिफिकेशन किसको देता है? Its main function is to develop food standard, guidelines, and code of practice for production and international trade in food products like milk products, meat, fish, etc. ठीक है. Job work of contacting ISO is done by BIS in India, while Director General of Health Services contacts the CAC. अब यहाँ पर जो जॉब वर्क है, जो ISO जो हमने आगे पढ़ा, राइट, तो वो जॉब वर्क ISO का इंडिया में हम किसको बोल सकते हैं? BIS को बोल सकते हैं, राइट. और CAC की अगर हमें कुछ कांटेक्ट करना हो रिगार्डिंग CAC, राइट, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो इडिबल प्रोडक्ट्स हैं, ये मिल्क वाले प्रोडक्ट्स, तो वो हमें किसको कांटेक्ट करना पड़ता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस कॉन्टैक्ट CAC. ठीक है. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कॉन्टैक्ट CAC. और जो BIS है जो इंडिया में, वो BIS जो है वो कॉन्टैक्ट करता है ISO. Is it clear till here? Right? Who can file a complaint and where? पहली चीज है, who can file a complaint? कंज्यूमर, कस्टमर फाइल कर सकता है कंप्लेंट. कहाँ पर वो कंप्लेंट कर सकता है वो पढ़ते हैं, और वो कैसे कंप्लेंट कर सकता है. कंज्यूमर हिमसेल्फ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज वो भी कंप्लेंट कर सकती हैं. कंज्यूमर सोसाइटी कंप्लेंट कर सकती है. कंपनी लॉ एंड अदर प्रिवेलिंग लॉज. Representative consumer on behalf of the consumer on the matter which is in the interest of all the consumer. दूसरे बहुत सारे कंज्यूमर्स के का इंटरेस्ट में होता है, तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर भी दूसरे कंज्यूमर के बिहाफ पे कर सकता है. Any member of the family of a person who has purchased a product or service with his permission may file a case if there is a shortage of material or service, or may lodge a complaint against laws. अब सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट लिया या मैंने कोई सर्विस यूज की, तो वो प्रोडक्ट की कंप्लेंट मेरी फैमिली में से कोई और भी कर सकता है. ठीक है. If the producer or trader neither finds solution nor shows preparedness to find solution of true, correct and clear the complaint, in that case, consumer or his family members may file a case in local, district, forum, state commission, national commission. They may complain and supply court, Office of Metrology, Science of Weights and Measures, Consumer Courts, Consumer Society, Collector Office. अब पहली चीज तो जब अगर आपको कंप्लेन है तो आप डायरेक्टली फोरम्स में या कोर्ट्स में नहीं जाते हो, जहाँ से ट्रेडर के पास जाते हो जहाँ से आपने वो चीज खरीदी है, राइट. लेकिन अगर वहां से हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन वी मूव टुवर्ड्स दीज कोर्ट्स एंड फोरम्स एंड दीज सोसाइटीज. Consumer can file a complaint if the item or service is faulty, deficient, or is not in accordance with the agreement or prevalent law. Thus, consumer may file a case against deficiency in quality, of type and purity of goods, less weight, etc. अब कंज्यूमर फाइल कंप्लेंट कब कर सकता है? जब अगर जो प्रोडक्ट या सर्विस उन्होंने जो ली है वो सही नहीं है, फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, जो उनको बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, राइट, प्योरिटी नहीं है, लेस वेट है, तो देन कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट. हाउ टू फाइल, किस तरह कंप्लेंट कर सकते हैं? अ विक्टिम में फाइल अ कंप्लेंट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, आइदर टाइप्ड और हैंडरिटन और थ्रू ईमेल. इफ द विक्टिम गोज टू द कोर्ट थ्रू लॉयर, देन ही नीड्स एन एफिडेविट. नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी देयर इन एप्लीकेशन. अब बहुत सिंपल क्लियर लैंग्वेज में एक पेपर में आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो. अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो आपको एफिडेविट की जरूरत होती है. आपको एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वो एप्लीकेशन में लिखना होता है. राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लेन एंड गिव द रीजन ऑफ कंप्लेनिंग क्लियरली. आपकी कंप्लेन क्या है और पूरा क्लियरली आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है. Enclose a copy of supportive evidence or documents related to accusation. Accusation. Never give the original evidence. जो भी आपके पास
डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू दैट रिसिप्ट है या जो उन्होंने बोला है, जो भी पेपर वर्क है वो सारा, उसका आपको जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी देना पड़ता है। कभी भी ओरिजिनल एविडेंस हमें देना नहीं चाहिए। आपका जो बिल है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स है, राइट, पेमेंट आपने चेक से किया है या जो कुछ भी है, या काउंटर अटैचमेंट अगर आपने कैश से किया है तो काउंटर, और गिव डिटेल्स ऑफ द चेक, सारी डिटेल्स हमें लिखनी होती है। Enclose copy of conditions mentioned by seller, copy of advertisement, pamphlet, prospects. Complaint may be lodged in any consumer forum by submitting appropriate fee as per amount of compensation claim. अब जो सेलर ने, जो ट्रेडर ने आपको प्रॉमिस किया था, आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखकर, पैम्पलेट के थ्रू देखकर प्रोस्पेक्ट्स जो आते हैं उसको देखकर आपने ये बाय किया ये प्रोडक्ट, वो सारा भी आपको अटैच करना पड़ता है, और वो जो फीस है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। कंज्यूमर में लॉन्च अ कंप्लेंट विद इन 2 years of emergence of reason of complaint. Any consumer may call Gujarat State Helpline toll free number 1800-233-0222 or national level helpline number 1800-11-4000 for consumer related complaint as well as for special information about law and guidance. अब 2 साल के अंदर वो आप कंप्लेन कर सकते हो। वो प्रोडक्ट और इतनी सारी सर्विस यूज करने के बाद आप सालों के बाद उसकी कंप्लेन कर सकते नहीं हो। गुजरात और इंडिया का हमारे पास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो या इंफॉर्मेशन ले सकते हो अबाउट लॉ एंड गाइडेंस। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर।